Hello my dear students, this is Sir Naseem Dulfikar. Please subscribe my channel and also press the bell icon if you want to get daily lessons on chemistry and English. So today we will discuss about the daffodils. So daffodils means Nargis ke Phool, a new poem in 9th English. The daffodils is written by William Wordsworth. William Wordsworth is called the poet of nature. He was born in beautiful Lake District. Why he is called the poet of nature? Because he used to write about natural objects and natural beauties like birds, animal, plants and these type of things. That's why he is known as poet of nature. In this poem, The Daffodils, William Wordsworth is sharing an incident that he is going somewhere from his lake house, and beside a lake he was going, and then he saw a host of golden daffodils. तो यहाँ पर एक मंज़र हम देख रहे हैं. विलियम वर्ड्सवर्थ बता रहे हैं अपनी एक ज़िंदगी में एक सीन के बारे में बता रहे हैं, एक इनके साथ एक ऐसा वाक़या पेश है उसके बारे में बता रहे हैं कि अब अपने घर से निकले, और घर से जब निकले तो झील के किनारे उन्होंने देखा कि बहुत सारे नरगिस के फूल खिले थे, डैफोडिल्स के फ्लावर गोल्डन कलर के जो बड़े खूबसूरत दिख रहे थे. उन्हीं खूबसूरत फूलों के बारे में इन्होंने क्या किया है, एक नज़म लिखी है. ठीक है, तो जो हम पढ़ेंगे, दैट्स वेरी ईजी एंड वेरी इंटरेस्टिंग पोम. I wandered lonely as a cloud that floats on high over vales and hills, when all at once I saw a crowd, a host of golden daffodils, beside the lake, beneath the trees, fluttering and dancing in the breeze, continuous as the stars that shine and twinkle in the Milky Way. They stretched in a never-ending line along the margin of a bay. 10,000 saw or at a glance, tossing their heads in sprightly dance. The waves beside them danced, but they outdid the sparkling waves in glee. A poet could not but be gay in such a jocund company. I gazed and gazed, but little thought what well the show to me had brought. For oft, when on my couch I lie, in vacant or in pensive mood, they flash upon that inward eye, which is the bliss of solitude, and then my heart with pleasure fills and dances with the daffodils. So these are the lines we are going to discuss today. These are very famous lines of English language. So first, I wandered lonely as a cloud. मैं बेमकसद फिर रहा था जैसे कि कोई बादल. वेंडर्ड मतलब बेमकसद फिरना. मैं बेमकसद फिर रहा था लाइक अ क्लाउड, जैसे कोई बादल फिरता है. दैट फ्लोट्स ऑन हाई ओवर वेल्स एंड हिल्स, वो बादल जो कि उड़ते हैं, तैरते हैं. वेल्स मतलब वादियों के ऊपर, हिल्स मतलब पहाड़ों के ऊपर. मैं उन बादलों की तरह बेमकसद फिर रहा था, या वेंडरिंग मतलब आवारागर्दी करना भी हो सकता है. मैं आवारागर्दी कर रहा था, बेमकसद फिर रहा था बादलों की तरह, वो बादल जो वादियों में, ठीक है, और पहाड़ों के ऊपर तैरते रहते हैं. When all at once I saw a crowd, अचानक से मैंने देखा एक भीड़, एक रश, एक हुजूम देखा. किस चीज़ का? A host of golden daffodils, सुनहरी रंग के गोल्डन कलर के नरगिस के फूलों का एक मजमा मैंने देखा, एक ग्रोह मैंने देखा, बड़ी तादाद में देखा मैंने. Beside the lake, beneath the trees, जो झील के साथ मौजूद थे, beneath the trees, और दरख्तों के नीचे मौजूद थे. दरख्तों के नीचे और झील के किनारे मैंने बड़ी तादाद में डैफोडिल्स के फूल देखे. ठीक है, फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज, जो फड़फड़ा रहे थे, हिल रहे थे और नाच रहे थे. इन द ब्रीज मतलब तेज़ हवा में, ठंडी हवा में वो नाच रहे थे और फड़फड़ा रहे थे. ठीक है, तो आई wandered lonely as a cloud that floats on high over vales and hills, when all at once I saw a crowd, a host of golden daffodils, beside the lake, beneath the trees, fluttering and dancing in the breeze. समझ गए मतलब इसके? सेकंड स्टैंजा. Continuous as the stars that shine, लगातार उन तारों की तरह जो चमकते हैं. And twinkle in the Milky Way, और टिमटिमाते हैं मिल्की वे में. ट्विंकल मतलब टिमटिमाना, टिमटिम करना. मिल्की वे कहकशा, कहकशा मतलब सितारों का झुरमुट. बहुत सारे स्टार्स एक साथ अगर आ जाए तो उसको हम कहते हैं मिल्की वे. गैलेक्सी है ये मिल्की वे, ठीक है, कहकशा है. And twinkle in the Milky Way, they stretched in a never-ending line, वो फैले हुए थे. Stretched मतलब फैला हुआ होना, वो फैले हुए थे. In a never-ending line, कभी ना ख़त्म होने वाली कतार में. Never-ending line, ऐसी कतार में जो कभी ना ख़त्म हो. Along the margin of a bay, झील के किनारे के साथ साथ वो कभी ना ख़त्म होने वाली कतार में फैले हुए थे. मार्जिन के साथ, उसकी लकीर के साथ वो फैले हुए थे. तो continuous as the stars that shine and twinkle in the Milky Way, they stretched in a never-ending line along the margin of a bay. 10,000 saw I at a glance, glance मतलब झलक. 10,000 देखा मैंने एक ही झलक में. एक ही झलक में मैंने 10,000 नरगिस के फूल देखे. Tossing their heads in sprightly dance, जो हिला रहे थे अपने सरों को. स्प्राइटली, खुशी से, डांस नाचते हुए, खुशी से नाचते हुए वो अपने सरों को हिला रहे थे सब फूल नरगिस के.
तो लगातार उन तारों की तरह जो चमकते हैं और टिमटिमाते हैं मिल्की वे में, वो फैले हुए थे कभी ना ख़त्म होने वाली कतार में झील के किनारे के साथ साथ, और सब के सब अपने सरों को हिला रहे थे और नाच रहे थे खुशी के साथ। 10,000 फूल उन्होंने देखे, कहते हैं इतनी बड़ी तादाद में फूल जमा थे वहाँ पे। क्लियर है यहाँ तक? सेकंड स्टैंजा। थर्ड स्टैंजा, द वेव्स बिसाइड देम डांस्ड बट दे आउटडिड द स्पार्कलिंग वेव्स इन ग्ली। वेव्स मतलब पानी की लहरें, झील में मौजूद पानी की लहरें। बिसाइड देम उनके साथ, डांस्ड नाच रही थी। मतलब हवा चलती है तो हवा चलने से फूल तो हिलते हैं और साथ में लहरें भी बनती हैं पानी में। तो कहते हैं पानी की लहरें भी नाच रही थी और डैफोडिल्स के फूल भी नाच रहे थे। बट दे आउटडिड द स्पार्कलिंग वेव्स इन ग्ली। दे मतलब वो फूल, नरगिस के फूल। आउटडिड मतलब हरा देना, शिकस्त दे देना, लेकिन उन्होंने हरा दिया डैफोडिल्स के फूलों को। डैफोडिल्स के फूलों ने हरा दिया स्पार्कलिंग वेव्स, चमकते हुए लहरों को। इन ग्ली मतलब खुशी, खुशी से हरा दिया। मतलब एक तरह से डांस कंपटीशन चल रहा था डैफोडिल्स के फूल और जो है लहरों के बीच में, दोनों नाच रहे थे हवा में। तो कहते हैं लेकिन जो ज़्यादा खूबसूरती के साथ और खुशी से नाच रहे थे वो नरगिस के फूल थे। नरगिस के फूलों ने हरा दिया पानी की लहरों को झील में मौजूद। बट दे आउटडिड द स्पार्कलिंग वेव्स इन ग्ली। अ पोएट कुड नॉट बट बी गे इन सच अ जोकन कंपनी। एक शायर कुछ नहीं कर सकता सिवाय खुश होने के। गे से मुराद यहाँ पर खुश होना। एक शायर कुछ नहीं कर सकता बट बी गे, लेकिन वो सिर्फ खुश हो सकता है इन सच अ जोकन कंपनी। जोकन मतलब मज़ेदार, तफरी वाला, खुशनुमा, खुशी वाला। इतने खुशहाली का जो महफिल, इतना खुशी वाला जो महफिल बरपा है, जोकन कंपनी मतलब महफिल। उस खुशी वाले महफिल में एक शायर क्या कर सकते हैं सिवाय खुश होने के? कहते हैं शायर कहते हैं मैं बहुत खुश हो गया ये सब कुछ देखकर। एक शायर खुश होने के सिवा कर ही क्या सकता है? और शायर भी कौन? विलियम वर्ड्सवर्थ, मतलब कि द पोएट ऑफ नेचर। उनको तो पसंद ही खूबसूरती है कुदरत की, तो वो देख कर बहुत ज़्यादा खुश हो गए। आई गेस्ट एंड गेस्ट बट लिटिल थॉट। मैं घूरता गया और घूरता गया। गेस्ट मतलब घूरना। मैं घूरता गया और घूरता गया, बट लिटिल थॉट लेकिन सोचा ही नहीं। वॉट वेल द शो टू मी हैड प्राउड। ये नज़ारा, वॉट वेल द शो, ये नज़ारा, ये जो शो है, वॉट वेल क्या दौलत लेकर आ रहा है मेरे लिए। मतलब मैं जितना देर से खड़ा होकर मैं देख रहा हूँ इस नज़ारे को, फूलों को, घंटे 2 घंटे से, इस नज़ारे से मुझे फ़ायदा क्या पहुँच रहा है? मैं क्यों देख रहा हूँ, घूर रहा क्यों? मैंने तो सोचा ही नहीं है। मतलब उस वक्त उनको लगा टाइम ज़ाया हो गया, टाइम वेस्ट हो गया। कितने देर तक मैंने फूलों को देख लिया, बिला वजह खूबसूरती इंजॉय कर ली। लास्ट स्टैंजा में इसका मैसेज है, फॉर रॉफ्ट व्हेन ऑन माय कवच आई लाई in vacant or in pensive mode, they flash upon that inward eye which is the bliss of solitude, and then my heart with pleasure fills and dances with the daffodils. For oft, oft मतलब अक्सर, often से निकला है often, TEN छोड़ EN हट गया है तो off रह गया है। अक्सर when in my on my कवच I lie, कवच मतलब बिस्तर, जब मैं अपने बिस्तर पर लेटता हूँ, they flash upon that inward eye, वो नज़ारा चमकने लगता है मेरी अंदर की आँख में। अब आप बोलोगे सर अंदरूनी आँख क्या होती है? देखो आँखें इंसान के पास 2 हैं, इनवर्ड आई, आउटवर्ड आई। आउटवर्ड आई कौन सी है? जिससे हम देखते हैं, ये आँखें जिससे हम देख रहे हैं अभी एक दूसरे को। और एक होती है इनवर्ड आई, अंदर की आँख, मेमोरी आई उसको हम कहते हैं, याददाश्त। बहुत बार चीज़ें आप अपने जहन में आँख बंद करके भी देख सकते हैं। जो चीज़ आपने इससे पहले देखी हो ये दोहरा सकते हैं ना उन चीज़ों को, तो उसको कहते हैं इनवर्ड आई। तो वो नज़ारा मेरी अंदर की आँख में, मेरी मेमोरी में चमकना शुरू हो जाता है। ठीक है, विच इज़ द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड। सॉलिट्यूड मतलब अकेलापन, ब्लिस मतलब रहमत, ब्लिस मतलब रहमत, जो अकेलेपन की रहमत की तरह है। एंड देन माई हार्ट विद प्लेजर फिल्स इंटेंसिव विद द डैफोडिल्स। और उसके बाद मेरा दिल खुशी से भर जाता है और डैफोडिल्स के फूलों के साथ नाचना शुरू कर देता है। फिर आखिरी स्टैंजा दोबारा बताता हूँ। अक्सर जब मैं अपने बिस्तर पर लेट जाता हूँ, इन वैकेंट और इन पेंसिव मोड, शायद ये लाइन मैंने छोड़ दी है, ये इन वैकेंट और इन पेंसिव मोड मैंने नहीं बोला है। वैकेंट मतलब खाली, फारिग, जब मैं फारिग होता हूँ। और इन पेंसिव मोड, पेंसिव किसे कहते हैं? सोचो विचार की आलम। जब मैं सोचो विचार की कैफियत में होता हूँ, जब मैं सोच रहा होता हूँ कुछ, तो जब मैं अपने बिस्तर पर लेटा होता हूँ रात के वक्त, बोरियत फील कर रहा होता हूँ, तो दे फ्लैश अपॉन दैट इनवर्ड आई, वो नज़ारा मेरे अंदर की आँख में चमकना शुरू कर देता है। और ये अकेलेपन की एक रहमत है, नेमत है मेरे लिए। और उसके जब मैं नज़ारा रिकॉल करता हूँ तो मेरा दिल खुशी से भर जाता है और डैफोडिल्स के फूलों के साथ नाचना शुरू कर देता है। मतलब ये कि वो शुरू में तो नहीं समझ पाया मुझे क्या फ़ायदा पहुँच रहा है इसका, मतलब क्यों देख रहे हो। आई गेस्ट एंड गेस्ट बट लिटिल थॉट व्हाट वेल द शो टू मी हैड प्राउड। लेकिन जब वो घर जाते हैं और जब वो ज़िंदगी में कभी भी उदास होते हैं, तो अगरचे वो नज़ारा उनकी आंखों के सामने नहीं है, लेकिन वो नज़ारा उनकी मेमोरी में सेव हो गया है, तो उसको बार बार रिकॉल करते हैं। अच्छा, मैसेज सुन लें आप इसका कि मैसेज क्या, पैगाम क्या मिल रहा है इस नज़म से हमें। हर पोम का एक मैसेज होता है। तो यार इसका मैसेज है, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर। एक खूबसूरती की चीज़ हमेशा की खुशी होती है, वो हमेशा की खुशी आपको प्रोवाइड करती है।
इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस एंड इट नेवर पास इनटू नथिंगनेस। जॉन कीट्स एक बड़े शायर है, वो ये कहा करते थे कि खूबसूरती की चीज़ हमेशा की खुशी होती है। देखो दो चीज़ें हैं, एक चीज़ है ब्यूटी और एक चीज़ है ब्यूटीफुल। एक चीज़ है खूबसूरत और एक चीज़ है गॉर्जियस। मतलब खूबसूरत और हसीन, ये दो चीज़ें हैं। अब इन दोनों वर्ड्स में क्या फ़र्क है? खूबसूरत इंसान और हसीन इंसान में क्या फ़र्क है? याद रखो ब्यूटी, दोनों बहुत, ब्यूटी और गॉर्जियसनेस, खूबसूरती और हुस्न, दोनों एक दूसरे के मतलब दोनों लगते तो एक जैसे वर्ड्स हैं बट अलग अलग हैं। खूबसूरती जो है ना टाइम बाउंडेड नहीं है, हुस्न जो है वो टाइम बाउंडेड है। खूबसूरती परमानेंट है, गॉर्जियसनेस टेम्प्रोरी है। खूबसूरती का ताल्लुक इंसान से नहीं है, देखने वाले की आंख से। जैसे शेक्सपियर कहा करता था, ब्यूटी इज़ इन द आइज़ ऑफ बिहोल्डर। खूबसूरती देखने वालों की आंखों में होती है, इंसान के अंदर नहीं होती। मेरी माँ, मेरी मदर, अगर से वो 60 ईयर्स की हैं, 60 साल की होंगी, और मेरे लिए मेरी माँ खूबसूरत है। माई मदर इज़ ब्यूटीफुल फॉर मी। मे बी शी इज़ नॉट गॉर्जियस बट शी इज़ ब्यूटीफुल। वो खूबसूरत है। खूबसूरती का ताल्लुक इंसान के फिजिकल अपीयरेंस से नहीं है, बल्कि आप किस नज़र से देख रहे हैं और आप कितनी मोहब्बत है आपके दिल में उस चीज़ के लिए, इसका ताल्लुक है खूबसूरती से। खूबसूरती कभी ढलती नहीं है, खूबसूरती बढ़ती है। मैं अपनी माँ को जितना खूबसूरत आज नहीं पहले नहीं मानता तो उतना आज मानता हूँ। 10 साल के बाद मुझे अपनी माँ और खूबसूरत लगेगी। सही बात है ना? टाइम बढ़ते रहता है, खूबसूरती बढ़ती रहती है किसी चीज़ की। हुस्न अलग चीज़ है। हुस्न में क्या होता है? ये टाइम के साथ साथ ढलता है। एक इंसान 20 साल में जितना हसीन है ना, 60 साल के बाद वो इतना हसीन नहीं रहेगा। हुस्न में कमी आती है। हुस्न का ताल्लुक फिजिकल अपीयरेंस है इंसान के, खूबसूरती का ताल्लुक फिजिकल अपीयरेंस से नहीं है। तो याद रखो कि ब्यूटी और गॉर्जियस दोनों में क्या फ़र्क है। समझ में आ रहा है? हुस्न और खूबसूरती में क्या फ़र्क है? तो खूबसूरती एक बड़ी चीज़ है हुस्न से। हुस्न तो टेम्प्रोरी, आज है कल नहीं है इंसान के पास, बट खूबसूरती हमेशा रहती है एक चीज़ की, कम नहीं होती कभी। वो बात समझ में आ गई? दैट्स इट।